دوستوں ایک تجربہ کار آدمی دیسی یعنی حقہ تمباکو سے اچھا خاصا منافع حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ ایسے راز ہیں جن کا اگر علم نہ ہو تو اچھا تمباکو نہیں پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے اہم رازوں میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سب سے اہم چیز جو ہے تمباکو میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول رکھنا، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنا، وائرس سے بچا کے رکھنا، پوٹاش والی کھادوں کا زیادہ استعمال کرنا، اور سب سے اہم چیزیں جو اس کے بغلی شگوفے ہیں ان کو مسلسل تلف کرنا۔ اگر یہ چیزیں آپ مناسب اور بر وقت کر لیتے ہیں تو بہترین قسم کا تمباکو آپ کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد اس کی پیداوار جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو پروسیس کرنے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں۔ اگر ان مراحل پہ بھی کوئی غلطی ہو جائے تو تمباکو کی کوالٹی بہت زیادہ خراب پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے کچھ بنیادی چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو عملی طور پر دکھاؤں گا کہ تمباکو کو کس طرح سے جو ہے کاشت کے بعد جب اس کی کٹائی کر لی جاتی ہے تو اس کی مختلف مراحل سے گزار کر کھبڑ کی صورت دی جاتی ہے جو کہ مارکیٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ حقہ تمباکو کی، دیسی تمباکو کی، جو کہ حقے میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ سگریٹ والے تمباکو کی۔ دوستو تمباکو کی نرسری کی کھیت میں منتقلی کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کی بروقت اور مناسب طریقے سے گل تراشی اور بغلی شگوفوں کو تلف کرنا۔ اگر گل تراشی اور بغلی شگوفے مناسب اور بر وقت تلف نہ کیے جائیں تو تمباکو کی کوالٹی بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جب فصل پر 30 سے 40% پھول نکل آئیں تو گل تراشی یعنی کہ پھولوں کو توڑنے کا عمل شروع کر دینا چاہیے، اور یہ عمل 3 تا 5 ہفتے تک جاری رکھنا چاہیے، اور ہر ہفتے، ایک ہفتے میں 2 بار یا کم از کم ہر ہفتے گل تراشی کرتے رہنا چاہیے۔ اور مزید جب آپ گل تراشی کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ بغلی شگوفوں کو بھی توڑتے رہنا چاہیے۔ ہر گل تراشی کے بعد مناسب زہر کا سپرے ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کے تمباکو پر کسی قسم کی بیماری کا حملہ نہ ہو پائے۔ جتنی زیادہ آپ گل تراشی اور بغلی شگوفوں کی تلفی کریں گے اتنا ہی اچھا اور معیاری کڑوا قسم کا تمباکو بنے گا۔ دوستو اگر تمباکو کو کمرشل پیمانے پر، بڑے پیمانے پر کاشت کیا ہوا ہو تو اس کے بغلی شگوفوں کو تلف کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لیبر اور مزدور اویلیبل نہیں ہوتے، اور ہم نے یہ پروسیس ہر ہفتے یا ہفتے میں 2 بار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے زہروں کے استعمال سے بھی ہم بغلی شگوفوں کو پھوٹنے سے روک سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پینڈی میتھلین 33% والا یا سٹیمپ کے نام سے ایک زہر آتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پینڈی میتھلین 6 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں ملا کر ایک محلول تیار کر لیں، اور جب آپ گل تراشی یعنی کہ پھول توڑ لیں، جس پودے کا پھول توڑیں اس کے فوراً بعد ایک کپڑے کو زہر میں بھگو کر اس چوٹی پہ اچھی طرح سے لگا دیں۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کے اس پودے سے نئے بغلی شگوفے نہیں نکل پائیں گے۔ اس طرح سے آپ اگر 1 ایکڑ میں جو ہے یہ عمل کرتے ہیں تو تقریباً 100 سے 120 لیٹر زہر آلود پانی استعمال ہو سکتا ہے، لہٰذا 1 ایکڑ کے لیے 600 ملی لیٹر سے لے کر 800 ملی لیٹر تک پینڈی میتھلین زہر استعمال ہو سکتا ہے۔ دوستو تمباکو کی کاشت صحیح طریقے سے کرنے کے بعد اس کی مناسب وقت پہ کٹائی بھی اہم چیز ہے۔ تو تمباکو کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ ٹکڑیوں میں اس کے پتوں کا رنگ زردی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص کر نیچے والے پتے جو ہیں وہ زردی مائل ہو جاتے ہیں، اور ان پر رگیں جو ہیں وہ زیادہ نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن آ جائے، تمباکو آپ کا پک جائے، یعنی اس کے پتے ٹکڑیوں میں زردی مائل ہونا شروع ہو جائیں، نچلے پتے جو ہیں وہ سبز زرد مائل ہو جائیں، اور ان پہ رگیں جو ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائیں، تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ کاٹنے کے بعد اس کو 1 سے 2
दिन जो है वो हल्की धूप में पड़े रहने देना है। याद रखें कि आपने कटाई ऐसे मौसम में करनी है जब बारिश ना हो। अगर बारिश कटे हुए तंबाकू पे बारिश हो जाती है तो इस सूरत में भी तंबाकू की क्वालिटी पे मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। जब आप तंबाकू को काट लें तो 1-2 दिन उसको धूप लगाएं। धूप 1 दिन लगानी है या 2 दिन लगानी है, ये मुनसर है तंबाकू में नमी की मिकदार पे। अगर तंबाकू में नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो 2 धूप लगा लें, और अगर नमी की मिकदार कम हो तो 1 धूप से भी गुजारा हो जाता है। जब आप तंबाकू को धूप लगा दें तो अगला स्टेप होता है हमने इसको ज़मीन में दबाना होता है। ज़मीन में दबाने के लिए इसके लिए एक गड्ढा खोदा जाता है, मुनासिब साइज़ का गड्ढा खोदा जाता है जो कि लंबाई में इतना हो कि उसमें तंबाकू मुकम्मल तौर पर फिट आ जाए। बाज़ औक़ात तंबाकू की हाइट कम होती है तो उसकी लंबाई भी उसी लिहाज से जो है एडजस्ट की जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ख्याल रखा जाता है तंबाकू में को गड्ढे में दबाने के दौरान कि गड्ढे का जो गहराई है वो इतनी हो कि जब तंबाकू हम उसमें डाल लें तो वो ज़मीन से नीचे ना रहे बल्कि ज़मीन से तकरीबन 1/2 फुट ऊंचा हो जाए, क्योंकि तंबाकू ने जब हमने इसको दबा के जाना है, इसकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होना है तो इसने नीचे बैठना होता है, और इस दौरान अगर बारिश हो जाए तो गड्ढे में पानी दाखिल हो सकता है। तो दोस्तों, मुनासिब साइज़ का गड्ढा खोदने के बाद इसके नीचे आप कोई जो है वो तह लगा सकते हैं किसी सरकंडे की। तो यहाँ पे आपको एक सर जो है, हम ये इसको बूटा कहते हैं सर का, तो उसको काट के नीचे तह लगाई जा रही है ताकि तंबाकू जो है उसमें मिट्टी की आमेज़श ना हो पाए। तो दोनों तरफ और नीचे बॉटम में तंबाकू के सरकंडे की तह लगाने के बाद उसमें तंबाकू को एक तरतीब के साथ तहदार तह जोड़ा जाता है। पत्ते एक साइड पे रखे जाते हैं ताकि जब हम उठाएं तो उस वक़्त भी तंबाकू के पत्ते डैमेज ना हो। तो जब सारा तंबाकू गड्ढे में फ़िट हो जाता है एक तरतीब के साथ, तो उसके बाद का मरहला होता है इसको ऊपर से अच्छी तरह से हवा बंद करके ढाँप देना। इस मकसद के लिए आप इसी तरह का सरकंडा ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल की है वो पॉलीथीन की शीट इस्तेमाल की है। पॉलीथीन की शीट से तंबाकू को ऊपर से अच्छी तरह से कवर करने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी तह लगा दी गई है। इससे ये होता है कि एक तो तंबाकू ऊपर से जो है वो मुकम्मल तौर पे हवा बंद हो जाता है, और दूसरा ये मिट्टी की कंटेमिनेशन को भी बचाती है, और तीसरा ऊपर एक प्रेशर रखती है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस बड़ा अच्छा चलता है। इस दौरान जो ख्याल रखने वाली चीज़ है कि जब आप गड्ढे को बंद करें तो वो उसका साइज़ जो है, उसकी ऊंचाई जो है वो ज़मीन से ऊंची होनी चाहिए ताकि बारिश की सूरत में पानी अंदर दाखिल ना हो पाए। तो दोस्तों, जब आप ये प्रोसेस मुकम्मल कर लें तो इसके बाद तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए तंबाकू को ज़मीन में दबे रहना देते हैं। ये भी मुनहसर करता है बाज़ औक़ात 7 दिन 8 दिन। यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें हमने तंबाकू को 8 दिन के लिए ज़मीन में दबाकर रखा था। उसके बाद 8 दिन मुकम्मल होने के बाद बड़ी ही एहतियात से ऊपर डाली गई मिट्टी को उतारा गया। उसके बाद पॉलीथीन शीट को उतार के देखें जी, नीचे से तंबाकू बेहतरीन किस्म का आपको नज़र आ रहा है जिसकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इसमें से आपको बहुत ही जो है स्वीट किस्म की स्मेल आएगी, जो कि तंबाकू जो इस्तेमाल करते हैं उनको बड़ी ही दिल आमेज़ या पुरकशिश लगती है। अब ये जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन का मुकम्मल हो चुका है। अगला मरहला है इसकी खब्बड़ बनाना, यानी कि रस्सियाँ बनाना। अब तंबाकू को आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके निकाला जाता है स्टिक को, और उसमें से पत्ते जो हैं वो अलहदा किए जाते हैं। पत्ते एक बंदा जो है वो पत्ते अलहदा कर रहा होता है और उसका ढेर लगा रहा होता है, और दूसरा साथ में जो है इसके खब्बड़ बनाने का प्रोसेस जारी रखते हैं। पत्ते जो हैं वो ये ख्याल रखा जाता है कि पत्तों का ढेर लगाते जाते हैं, चूँकि पत्तों में अगर नमी बिल्कुल धूप की वजह से ख़त्म हो जाए तो फिर उनकी रस्सियाँ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
रस्सियाँ बनाने के बाद इसको एक मखसूस किस्म की शक्ल में तह कर दिया जाता है, जिसको आम ज़बान में यहाँ पे खब्बड़ कहा जाता है। अभी जब ये खब्बड़ बन जाते हैं तो इसके बाद कुछ लोग जो हैं वो इसको 1 या 2 दिन सायादार जगह पे ढाँप के रख देते हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से तंबाकू की क्वालिटी अच्छी होती है, और दूसरा ये कि ये दोबारा जब हम इसको खुश्क करेंगे तो दोबारा नमी जो है वो नहीं पकड़ पाएगा। तो दोस्तों बहरहाल 1 या 2 दिन आपको इसको सायादार जगह पे दबा के थोड़ा सा रख लें, और 1 या 2 दिन बाद आप इसको निकाल लें और जो है धूप में अच्छी तरह से फैला दें, ताकि इसमें से नमी सारी की सारी निकल जाए। जब इसमें नमी की मिकदार जो है वो 10% के करीब आ जाए तो आप इसको सेबे की बोरियां यानी कि पटसन की बोरियों में डालकर महफूज कर लें। ये तंबाकू आप आने वाले पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये महफूज है, बल्कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दौरान दोस्तों अगर बारिश वगैरह होती है तो वक्फे से अपने तंबाकू को चेक करते रहें। अगर उसमें नमी की मिकदार बढ़ रही हो तो उसको बाहर निकाल के धूप ज़रूर लगवाएं। अगर उसमें नमी ज़्यादा हो जाती है तो उसको फफूंदी लगने का अंदेशा होता है, जिसकी वजह से तंबाकू की क्वालिटी फिर से ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप बेहतरीन किस्म का हुक्का तंबाकू तैयार कर सकेंगे। चूँकि तंबाकू की क्वालिटी, जो हुक्के वाले तंबाकू की क्वालिटी है, वो उसकी कड़वाहट और स्मेल से जो है वो मुनहसर की जाती है। तो अगर आप इन प्रोसेस जो कि बताए गए हैं इनको प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से अंजाम दे लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका तंबाकू भी बेहतरीन क्वालिटी का पैदा होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन की मदद से एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का तंबाकू पैदा कर सकेंगे और अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।